Okay, now we'll talk about third and very important biomolecule, that is carbohydrate. Carbohydrates are actually the naturally occurring organic compounds of carbon, hydrogen and oxygen. And carbohydrates are not only important in food, but they are important in providing us shelter as well as clothing. Like the wood that we use, it can be in the form of cellulose. The clothes that we wear, cotton, linen, that have the that contains cellulose. सो कार्बोहाइड्रेट्स को अर्लियर डेज में हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता था विद दिस जनरल फॉर्मूला. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता था हैविंग दिस जनरल फॉर्मूला. लेकिन ये फॉर्मूला जो था वो कुछ मॉलिक्यूल्स में लाइक ग्लूकोज में C6H12O6 हो गया, फ्रक्टोज हो गया, उसमें तो फिट होता था. लेकिन बाद में ये फॉर्मूला कुछ मॉलिक्यूल में फिट नहीं हुआ. एक मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है रेमनोज. रेमनोज एक्चुअली इज अ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन रेमनोज जो होता है कैन नॉट justify or cannot fulfill this general formula, cannot follow this general formula. And there are molecule like methanol. Methanol is not a carbohydrate, but वो ये general formula या acetic acid जो है वो एक carbohydrate नहीं है, लेकिन वो ये general formula follow करते थे. तो आप वो क्यों? क्योंकि वो भी hydrates of carbon में ही आते हैं. तो इसलिए ये डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बेस्ट सूटेड नहीं है. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन व्हिच प्रोड्यूसेस simple molecule on hydrolysis. You can note down the definition that they are the organic compounds. They are optically active organic compound which are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone which gives simple molecule on hydrolysis. हम कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपली शुगर्स भी कहते हैं, बट कुछ कार्बोहाइड्रेट नॉन शुगर्स भी होते हैं. I'll tell you what is the difference between sugar and non-sugars. And they are commonly called as सैकराइड्स एज वेल, बिकॉज ये वर्ड जो है वो सैक्रिन से लिया गया है जिसका मतलब शुगर होता है. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. यानी कि जब हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वी फाइंड कि उसके अंदर डिफरेंट या कहना चाहिए बहुत सारे वी फाइंड पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होगा और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब OH. सो डिफरेंट आप कह सकते हैं सो मेनी OH ग्रुप विद एल्डिहाइड और सो मेनी OH ग्रुप विद कीटोन. Now we talk about the classification of carbohydrates. How do we classify carbohydrates? So we classify the carbohydrates into number 1 monosaccharide, monosaccharides are the simplest carbohydrates which cannot be further hydrolyzed into simple molecule. You can say the single unit of carbohydrate represents the monosaccharide. About 20 monosaccharides have been discovered or they are known to us. For example, you have different examples of monosaccharide and we'll discuss in detail about them. Glucose has the formula C6H12O6. Fructose we have, ribose we have, galactose we have. These are different examples of monosaccharides. So monosaccharides are the organic compounds which, or you can say they are the simplest carbohydrate which cannot be further hydrolyzed into simple molecules or which cannot be broken down into simple molecules. Then we have oligosaccharides. Oligosaccharides are those carbohydrates which contain or which give 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis. So इसमें हम further और classification करते हैं. That is number 1 disaccharide. ये 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड तक बने होंगे. डाइसेक्राइड्स जो होते हैं वो आपके 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स को जब जोड़ देंगे तब डाइसेक्राइड बनेगा. जैसे कि आपका होता है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज. दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर डाइसेक्राइड. डाइसेक्राइड आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स. ठीक है. देन आपका आता है ट्राइसेक्राइड. ट्राइसेक्राइड में देयर आर 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स लाइक रेफिनोज,
ठीक है, तो इसी तरह टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, ऐसी हम 10 तक इसको ले सकते हैं। 10 मोनोसेक्राइड्स को हम जोड़ सकते हैं और जो आपके ओलिगोसेक्राइड के अंडर आते हैं। We'll discuss in detail about this glucose and fructose। अगर आप मोनोसेक्राइड की बात करें, डाइसेक्राइड की आप बात करें यहाँ पे, तो we'll talk about सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। Then we have third type of classification, third category of carbohydrate, that is polysaccharides। Polysaccharides are actually the polymers, or you can say that they are made up of large number of monosaccharide units, या आप कह सकते हैं they are the carbohydrate which produces large number of monomeric units, or you can say large number of monosaccharide units on hydrolysis। The best example of it is starch, cellulose, we'll discuss them one by one, and there is glycogen also। Starch and cellulose has the formula C6H10O5 whole N। ठीक है, अच्छा, I am saying that oligosaccharides or polysaccharides, they are made up of or they are formed by joining different monosaccharide units। तो यहाँ पे जब monosaccharide units जुड़ते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आती है that is important, एग्जाम में डिफाइन करने को भी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये लिंकेज क्या होती है या ये बॉन्ड क्या होता है? दिस इज द लिंकेज बिटवीन द टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ठीक है, इट इज द बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स व्हेन दे आर कंबाइंड टू गिव यू ईदर ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। हाँ, तो we'll talk about the monosaccharides now। ठीक है, we just I've just given you the introduction of carbohydrates। अब हम monosaccharides के बारे में बात करेंगे। So monosaccharides मैंने आपको बताया they are the simplest carbohydrates, or you can say they are polyhydric aldehydes or polyhydric ketone which cannot be further hydrolyzed into simpler carbohydrates। Polyhydric और polyhydroxy you can use it, they are the same, दोनों को हम यूज कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट OH ग्रुप्स, डिफरेंट नहीं, so many OH groups like I have written over here, I'll explain it। Okay, so अब इसमें मैंने आपको कहा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इफ देयर इज एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन द मोनोसैकेराइड, तो उन मोनोसैकेराइड्स को हम एल्डोसिस बोलते हैं। इफ देयर इज कीटोनिक ग्रुप इन द मोनोसैकेराइड, देन हम उनको क्या बोलते हैं? कीटोसिस। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे उनका जो सफिक्स होता है इट इज ओज, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, रेफिनोज, राइबोज, ओके, गैलेक्टोज। सो दे हैव डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट व्हिच हैव द एंड नेम और द सफिक्स ओज। Okay, so monosaccharides can be aldoses or it can be ketoses, or the minimum number of carbon atom in the monosaccharide or in any carbohydrate can be 3। जैसे कि I have made this structure, it is aldose because यहाँ पे आपको aldehyde group दिखाई दे रहा है। इसका नाम होता है glyceraldehyde and it is made up of 3 carbon atom, 1, 2 and 3। ठीक है, so it can be called as aldotrioses। Aldotrioses because it contain aldehyde group and it contain the 3 carbon atoms, इसलिए हमने इसको aldotrioses बोला। इसी तरह aldotetrosis भी हो सकता है, aldopentosis भी हो सकता है, aldohexose भी हो सकता है, like here। ये क्या है आपका? This is the structure of glucose। This is the structure of glucose and it is aldohexose because aldohexose इसलिए है because it contain the aldehyde group and 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कार्बन एटम्स आ गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एल्डोहेक्सोज। इसी तरह फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, तो फ्रक्टोज जो होता है इट कंटेन द कीटोनिक ग्रुप, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कीटोहेक्सोज बिकॉज इट कंटेन द कीटोनिक ग्रुप विद द 6 कार्बन एटम, तो इसको हम बोलते हैं कीटोहेक्सोज। ओके, इसके साथ आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, दैट इज DNL डेजिग्नेशन। What is DNL designation? DNL designation जो होता है वो हम ऐसे पता करते हैं, and it should not be confused with the small d small l। ये this is capital D and capital L, इसको हमें small d small l के साथ confuse नहीं करना है, because small d and small l हम optically active compounds के लिए लिखते हैं या optical rotation बताने के लिए लिखते हैं। This is different, small d small l is different from this capital D and capital L। See, like
मैं इसको लिखूंगी डी ग्लूकोज। वाई आई एम राइटिंग डी ग्लूकोज? डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज या एल फ्रक्टोज कब लिखते हैं? सी यू हैव टू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और आपको सेकेंड लास्ट कार्बन देखना है। दिस इज योर लास्ट कार्बन CH2OH, ठीक है, आपको सेकेंड लास्ट कार्बन देखना है। इफ द सेकेंड लास्ट कार्बन कंटेन द OH group on the right, if the OH group on the second last carbon is on the right, ठीक है, देन हम उसको क्या डेजिग्नेट करते हैं? डी, कैपिटल डी। सो ये क्या हो जाएगा आपका? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा बिकॉज इट कंटेन द OH ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। सपोज दिस इज डी ग्लूकोज बिकॉज दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन एंड द OH group is on the right hand side, so I will write it D glucose. If OH group is on the left, if OH group is on the left, then we'll designate it with the capital L. अच्छा, मैंने आपको कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी शुगर और नॉन शुगर। शुगर जो होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन एंड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। और जो नॉन शुगर्स होते हैं दे आर अमॉर्फस, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। तो जनरली जो शुगर्स होती हैं वो डी सीरीज को बिलोंग करती हैं और नॉन शुगर्स जो होती हैं वो एल सीरीज को बिलोंग करती हैं। सो हियर दिस इज अ वेरी शॉर्ट थिंग अबाउट मोनोसेकेराइड। विल डिस्कस अबाउट द ग्लूकोज, फ्रक्टोज इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेसन।